جی السلام علیکم نیوٹن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں؟ السلام علیکم کیسر بھائی، ٹھیک ہو آپ؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. میں کشمیر سے ہوں کیسر بھائی، اور آپ کو بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں. میں سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں MBBS کے لیے پریپریشن کر رہا ہوں جو ہمارے کشمیر میں ہوتا ہے. میں انڈیا کشمیر سے ہوں. جی جی. اور یہاں پہ ہمیں فزکس کیمسٹری بایو سب پڑھنا پڑتا ہے، اور بہت گہرائی سے پڑھنا پڑتا ہے. اس میں میں پچھلے 2 سال سے کوچنگ کر رہا تھا. بہت واسٹ گیا میں فزکس کیمسٹری اور بایو میں. اور جو بھی ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ہم سائنس پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن جب میں نے بہت واسٹ پڑھا فزکس کیمسٹری اور بایو کو، تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بہت سارے ایکسیپشنز ہیں. فزکس کیمسٹری اور بایولوجی 50% ایکسیپشنز پہ ہیں. تو یہ کس پہ بات رکھ رہے ہیں اپنی؟ یہ جو بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں. آواز تھوڑی سی آپ کی بیچ میں کٹ جاتی ہے، یہ بہت وہ چوک کر جاتی ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ بہت سی آپ نے جب پڑھا تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ نیوٹن بھائی آپ کے مائک میں ایشو آ رہا ہے، جب کائنڈلی آپ میوٹ کر لیں یا میں میوٹ. میں یہ کہہ رہا تھا، جب میں نے پڑھا فزکس کیمسٹری اور بایولوجی تو میں نے دیکھا وہاں پہ بہت زیادہ ایکسیپشنز ہیں، یا تو لمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں. تو پھر جو بھی ایتھیسٹس ہیں یہ اپنی بات کس چیز پہ رکھ رہے ہیں؟ وہ سب تو وہاں پہ ایکسیپشنز ہیں، لمیٹیشنز ہیں. آپ نے بھی بہت ساری ریسرچ کی ہے، میں آپ کو بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں. تو یہ اپنی بات کس چیز پہ رکھ رہے ہیں؟ جب یہ ہار جاتے ہیں پھر میں نے آپ کا جو ڈبیٹ دیکھا تھا غالب کمال کے ساتھ، پھر ایک گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اسٹریم سے نکال دیتے ہیں. دیکھیں، ایک مذہب ہے جیسے ہمارا مذہب ہے مثال کے طور پہ، کہ جی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، یا کسی بھی انسان ہے بیسیکلی جو بشری غلطیاں ہیں وہ تو سبھی میں ہوں گی. لیکن ہمارا ایک ویو ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں گیپ ہو سکتے ہیں، لیکن دس از دا ٹیسٹ، اور ہمارے پاس ایمان ہے. ہم 90% چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. 10% کو اگر نہیں سمجھتے تو ہم ہیومن ایکسپیرینس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہتے ہوئے جو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ دس از واٹ اٹ از. اس چیز کو کاؤنٹر کرتے ہیں ایتھیسٹ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے. تو ثبوت تو کسی کے پاس بھی ہر چیز کا نہیں ہوا کرتا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو اس لیے یہ پرابلم ان کو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ ثبوت نہیں دے پاتے چیزوں کے، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی ہماری لائن میں آ کے کھڑے ہو گئے. جیسے آپ سے پہلے جو ہمارے ایک بھائی آئے ہوئے تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ نہیں آپ میں بھی تو ایسا ہی ہے، تو بھائی ہم اور آپ ایک جیسے ہو گئے تو پھر ہماری لائن میں آپ نے آ کے کھڑا ہونا ہے. تو اگر ہم اور آپ ایک جیسے ہیں تو پھر یعنی کہ ایمان ہی لے کے آنا ہے. تو پھر اس چیز پہ ایمان لے کے آنا جس میں کم سے کم آپ کو جنت کی موجیں تو ہوگی، دوزخ کی پھینٹی تو نہیں ہوگی اگر ایمان ہی لانا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی پوری انفارمیشن نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتی ہے. لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہر چیز کا ایویڈنس، جب وہ نہیں نکلتا جی. اور جب آپ نے ایوولوشن پہ کی تھی نا بات اس سے، تو ایوولوشن میں ایک تھیوری آتی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، تھیوری آف سپر کریشن، اسپیشل کریشن ایک تھیوری آتی ہے. اس میں کہتا ہے کہ جو سائنٹسٹ ہے اس کا نام میرے دماغ میں بھی نہیں آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہیومن ہے ہم کو ایک اسپیشل پاور نے بنایا ہے. اور وہ اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ارتھ پہ پہلا آدمی ہے وہ آدم ہے، وہ اس کو ایڈم کہتا ہے، اور جو پہلی عورت ہے وہ حوا علیہ السلام، وہ اس کو ایو کہتی ہے اس میں اپنی تھیوری میں، کیونکہ وہ شاید کرسچن تھا وہ سائنٹسٹ. ابھی اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آتا. پھر وہ اس کو کیوں نہیں مار رہے ہیں جب وہ ایوولوشن مار رہے ہیں؟ وہ اس تھیوری کو کیوں نہیں مار رہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو ایک سپر پاور نے بنایا ہے، سپر نیچرل پاور نے. وہ ایتھیسٹس پہ وہ پھر اس بات سے انکار کر رہے ہیں. میں اپنے جو میرا ڈسٹرکٹ ہے میں اس سے دور پڑھ رہا تھا، جو کشمیر میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا، میں دوسری سٹی میں پڑھ رہا تھا. وہاں میرے ساتھ ایک باہر کا تھا، وہ کشمیر کا نہیں تھا، وہ ایک ایتھیسٹ تھا. تو جب ہم نے ایوولوشن پڑھنا اسٹارٹ کیا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا دیکھ یہ بھی ہمارا سچ ہے، وہ بھی ہمارا سچ ہے، تو کیا کہہ رہا ہے. پھر جب ہم نے ساری تھیوریز پڑھی، کیونکہ ہمیں وہاں پہ ایک ہی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی، جتنی بھی پرانی تھیوریز ہے سب، جب میں نے اسے کہا کہ یہ تھیوریز بھی پڑھو، پھر تو آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ ہمیں کسی سپر کریشن نے بنایا ہے، سپر پاور نے بنایا ہے. پھر وہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہاں انٹرسٹیشل تھیوری جو آپ نے پڑھی ہوگی، جیسے کہ ان میں اس تھیوری میں کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ایلینز آئے تھے زمین پہ، انہوں نے یہاں پہ کچھ سیڈس رکھے زمین پہ اور اس سے ہیومنز بن گئے. ایسی بھی تھیوری ہیں. میں نے پھر اسے کہا اس سے بھی ایکسیپٹ کرو، تو وہ کے بعد وہ کہنے لگا نہیں اب میں ایتھیسٹ کو نہیں مانتا. اچھا نیوٹن صاحب، میں بہت معافی چاہوں گا، ایک تو آپ کو تھوڑی سی ساؤنڈ میں تھوڑا سا ایشو ہے، اور دوسرے کہ ہمارا جو آپ کی باتیں ہیں یہ ساری اچھی ہیں، آئی ریئلی انجوائے دیم، لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ ایتھیسٹ کو آج ہم موقع دیں کہ کنونس کریں ہمیں کہ یہ چیزیں.
जी कैसर साहब, मैं कश्मीर से हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन और बहुत टाइम से चाह रहा था आपसे बात करूँ. शुक्रिया इस सब के लिए. बहुत शुक्रिया. मैं सिर्फ न्यूटन भाई आपसे और बाकी जितने भी भाई हैं मैं उनसे मैं अर्ज करूंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फैंडम दैट जस्ट डजंट अप्लाई टू अस. मेरे फैंस नहीं, हमें कॉज में बिलीव करते हैं सब फैंस नहीं, हमें कॉज में बिलीव करते हैं. ये जब हमारे फैंस बनते हैं ना तो हमारा दिमाग खराब होता है. अगर हम समझते हमारे फैंस बनते हैं ना तो हमारा दिमाग मैं खुद को डाकिया कहता हूँ, डाकिया को डाकिया रहने आपने दें. मुझे बहुत मुतासिर किया है. मालूम क्या था नितिन भाई, मैंने खुद आपको आपका माइक अल्लाह ताला किया हमें 2-3 दीन दफा, पे लेकिन रखे. आपने अनम्यूट खुद ही कर लिया. म्यूट इसलिए कर रहा था कि डिस्टॉर्शन आ रही है, आपके माइक का कनेक्शन हो जाता है दूसरे आपके माइक के साथ, इसलिए मैंने आपको म्यूट किया. इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप दोबारा तशरीफ़ लाएंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया सर राजा साहब को सुनने का, और सुनते रहिए और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आप डिबेट का जिक्र कर रहे थे, डिबेट के अलावा माशाअल्लाह बहुत सी स्ट्रीम्स जिनमें बहुत से लोगों के साथ हमारी बातचीत होती रहती है. और आज भी हमारी जो टॉपिक के हवाले से हमने मेरा ख्याल के 4 से 5 या 30 दोस्तों से बात की है, लेकिन अभी तक कोई भी टॉपिक पे आके बात करना ही नहीं चाह रहा. तो आप इनसे इनकी आइडियालॉजी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास कन्विंस करने के लिए क्या है. तो इनसे मुतासर होने के बजाय आंखें खोल के रखें और सुनते रहें राजा साहब को भी, और दूसरे अहबाब जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, उनको भी सुनते रहें. इंशाल्लाह आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे और आप चैनल पे तशरीफ़ लाते रहें. कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं. आज के लिए माजरत. मुसलमान दोस्त अब मेरा ख्याल है राजा साहब हमारे साथ रह गए हैं. 30 दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी बारी जो है वो भुगता के जा चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसा कुछ था कि वो कन्विंस कर सकें, इसीलिए वो आ ही नहीं रहे. जो आए हैं उन्होंने भी कन्विंस करने की बजाय क्वेश्चन किए. हालांकि हमने कहा कि हम तमाम की तमाम स्ट्रीम जो हैं वो सवालों के जवाब देते हैं. आज की स्पेशल स्ट्रीम आपके लिए कि यार आप हमें कन्विंस करें. हम भी हो सकता है कि आपकी आइडियालॉजी में इतनी जान हो कि हम आपसे कन्विंस हो कि हम भी एथियस्ट हो जाएं. हमें कोई अना का मसला तो नहीं है, अगर आपके पास दलाइल हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोई भी एक भी दलील लेके कोई भी नहीं आया. मैं तो बहुत मायूस हुआ हूँ सर. बाकी कुछ दोस्त अहबाब मौजूद हैं, उनको अब लेते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो एथियस्ट नहीं है, वो मुस्लिम होंगे. ये हमारे साथ दोस्त हैं जी, क्या नाम है इनका? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? मैंने मना किया था जी. एथियस्ट सन ऑफ मक्की, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर हमने आपसे गुजारिश की थी, राजा साहब ने आपसे हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि अपना नाम चेंज कर लें. यार ऐसे ना करें, देख लें आपने फिर वही तस्वीर लगाएंगे, वही नाम रखा हुआ. नहीं वो कर लेंगे, आज कर लेंगे. और आप खैरियत से हैं? चले शुक्रिया, जरूर कर दीजिए. जी सर क्या कहेंगे आप? सर हम इंडिया से हैं और जी जी कुछ मतलब इस्लाम के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि जैसे बहुत से लोग उंगली उठाते हैं इस्लाम के बारे में, हम और हमारे यहाँ एक मतलब वो है, एक पंडित है बहुत, लक्ष्मी नारायण के नाम से. उन्होंने एक बुक लिखी थी इस्लाम में आतंकवाद. उन्होंने ये बुक लिखी इस्लाम में आतंकवाद. तो उनसे जब उन्होंने बुक लिखी तो यहाँ बहुत सपोर्ट किया गया उनको, मतलब काफ़ी. तो जब उनसे सवाल किया गया कि आपने इस्लाम को पढ़ा है, आपने हमारे नबी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है, तो जब उन्होंने पढ़ा उस बारे में, इस्लाम के बारे में, तो वो फिर उनका झुकाव मतलब इस्लाम की तरफ ही हो गया. आज वो इस्लाम का ही प्रचार करते हैं. उनका नाम लक्ष्मी नारायण है और उनकी वीडियो यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है. हम भी सुनते हैं उनको, और वो इस्लाम की अच्छी नॉलेज देते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि हाँ हमने ये बुक लिखी थी और क्या नाम है, ये हमारी गलती थी, हमने इस्लाम को पढ़ा समझा, तो हमने जाना कि हाँ इस्लाम शांति वाला मज़हब है. वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं. उनकी लक्ष्मी नारायण नाम है, स्वामी लक्ष्मी नारायण, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो हैं. इस तरीके के और भी बहुत से केस हैं, लेकिन अब टाइम होता तो बताते. ऐसे ही बहुत से केस हैं. जी जी. डच पार्लियामेंट के एक साहब जो कि इस्लाम को बैन करना चाह रहे थे नेदरलैंड्स में, डच हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑल्ट राइट के थे वो मेंबर, इस्लाम से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, और इस्लाम को ही उन्होंने किताब लिखने के लिए इस्लाम पे तहकीक करना शुरू की. अभी वो ज़िंदा हैं वो. उस तहकीक में वो कि मैं इस्लाम सारा डेटा इकट्ठा करके मैं किताब लिखूं, और वो तहकीक करते करते वो इतने ज़्यादा इससे कन्विंस्ड हुए कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ था, और वो एक्चुअली वो खुद ही मुसलमान हो गए फिर. ऐसा हमारे यहाँ तो कई केस हैं जैसे ही. हमारे अब कभी जब फुर्सत होगी, जब टाइम होगा ज़्यादा, तो हम आपको और भी केस बताएंगे. फिलहाल अभी एक हमने बता दिया. बहुत सी बातें जो मतलब फेमस थे बहुत, उस टाइम पर फेमस हुए, किताब लिखी, तो
यहाँ मतलब यहाँ ऐसा हाल है कि बस इस्लाम के बारे में आप कुछ भी जी कह जुबैर दो साहब, खराब इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? आप माशाल्लाह काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आज का मौजू भी आपको पता था और बहुत से एथीस्ट जी दोस्त जी भी जी आए, उन्होंने नहीं बात भी की, शुक्रिया उस पे शुक्रिया आप क्या कहते हैं? नहीं शुक्रिया थैंक यू अच्छा आप अच्छा काम कर रहे हैं बस यही कहना चाहिए जी, दुआ अल्लाह आपको दुआ किया सलामत करें, रखे अल्लाह ताला राजा साहब को सलामत रखे, इनकी जी तौफीकात में अल्लाह आपको इजाफा सलामत फरमाए। रखे आपके इल्म में और इजाफा दे आप हमें भी इल्म आमीन सिखा सकें आमीन जी आमीन। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हमारे शुक्रिया साथ हैं इत्तेहाद खान। अपना राजा साहब अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मज़ीद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको लिंक शेयर दोबारा करना होगा, क्योंकि लिंक जो है वो बहुत पीछे चला जाता है और फिर दोबारा करना पड़ता है शेयर ताकि मज़ीद दोस्त जुड़ सकें। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जी मैं आप कर एथिस्ट को ले लें, पहले एथिस्ट को ले लें, हमारा क्या है, हमारे तो आते रहते हैं, आप एथिस्ट को ले जी लें। जी, बहुत शुक्रिया सर। हमें अब आइडिया नहीं है कि कौन एथीस्ट है। ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ बता दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैंने लिंक मुझे इनसे बैक स्टेज रिक्वेस्ट कर की है लें, कि मुझे बैक जी स्टेज कर मैं लें ले दूसरे को। कोई बात नहीं, आप एक मिनट इधर ही रहें, हो सकता है कि वो भी हमारे मुसलमान भाइयों। प्राइवेट चैट में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे एथीस्ट दोस्त हैं वो बता ज़रूर दें ताकि नेक्स्ट उनको लिया जा सके। ये लिंक दोबारा शेयर कर दिया गया है और कोई अगर एथीस्ट दोस्त आ रहा है तो पहले बताए प्राइवेट चैट में कि वो एथीस्ट है तो उसको पहले मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमें 2.25 घंटे हो गए, हम कन्विंस होने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ी मायूसी हो रही है कि कोई आके कोशिश ही नहीं कर। ट्राई तो करें, कोई बात नहीं यार, बार दफ़ा कामयाबी नहीं होती, कोशिश तो करें। और फैजान भाई जिन्होंने कहा था कि हमने शायद कोई अपना कोई एथियस्ट घर के लेके आए जी 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 वो कहते हैं मेरे पास काफ़ी सवाल हैं, पूछना चाहता हूँ। फैजान प्लीज जॉइन अस, आई बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू सर। अब हमारे साथ काफ़ी दोस्त जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर प्राइवेट चैट में कोई दोस्त बता दे तो आसानी हो जाएगी जो एथीस्ट है। जी जी इत्तेहाद खान भाई, तब तक आप बात कीजिए, आप बात अपनी मुख्तसर कर लीजिएगा, तब तक प्राइवेट चैट में आ जाता है कि कौन एथीस्ट है और कौन मुस्लिम है। जी इत्तेहाद खान साहब, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली भाई? बहुत ज़बरदस्त टीम चल रही है माशाल्लाह। आपने लॉजिकली, साइंटिफिकली, हिस्टोरिकली आपने बहुत अच्छा रिफ्यूट किया है। असल में प्रॉब्लम ये है एथिस्ट की कि जब मैं भी एथिस्ट था ना तो आई वाज कंफ्यूज्ड। ये पहला स्टेज जो है ना, पहला ये चीज़ आता है, अंदर से आता है कि सबसे पहले जब आप एथिस्ट हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा लैपटॉप जी इत्तेहाद खान भाई साहब, हमारे साथ अब काफ़ी दोस्त जुड़ चुके हैं। हाँ उनको ले लीजिए, मैं बाद में सर आप लेकिन मैं कभी इत्तेहाद खान साहब आपको मैं कभी तफसील से आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि आपकी कहानी के व्हाट टर्न्ड यू अराउंड, तो इंशाल्लाह मैं कभी तफसील से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जरूर कैसे। जी सर, बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और इसके लिए हम माज़रत चाहते हैं कि आपसे फिलहाल तफसीली बात नहीं हो सकी और इंशाल्लाह फिर कभी आपको बहुत शुक्रिया सर। कोई बात। ट्राई टू लर्न, आई थिंक प्राइवेट चैट में तो आपने नहीं बताया, लेकिन शायद ट्राई टू लर्न। कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आवाज़ आ रही है? एकदम जी बिल्कुल ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा सर, काफी सारे क्वेश्चन है मेरे दिल में। मैं कुछ छोटे सर आज क्वेश्चन देखें, हम हर बार क्वेश्चन के आंसर आज हमारी बारी है। आज हमारी बारी है यार। स्टिल मुस्लिम मानता हूँ मैं, रोजे भी रख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स अल्लाह ने अगर दिमाग दिया तो चीजें तो आती हैं बहुत सारी। अब जिस तरह वो चलें फिर आज ऐसा करें कि एक क्वेश्चन कर ले, आप एक क्वेश्चन कर लें, उसके बाद दूसरे दोस्तों को चांस दो तीन फिर कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल एक कर। अच्छा, कई जगह पे देखिए अभी तक इस्लाम नहीं पहुंचा। जिस तरह 1 बिलियन तो मुस्लिम होंगे, तो बाकी 7 बिलियन क्रिएटर कैसे उनको दो में डाल सकता है? बड़े अच्छे लोग भी हैं। जी नहीं डालेगा, आप इस्लाम नहीं पहुंचा उनको नहीं डालेगा, उस पर इस्लाम क्लियर है कि जिन लोगों तक इस्लाम नहीं पहुंचा क़यामत के दिन उन लोगों के लिए टेस्ट होगा, वो चूज़ करें उसकी बेस पे उनकी जन्नत दोज़ख होगी, उनका जो होगा। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिन तक इस्लाम नहीं पहुंचा उनको बिला वजह दोज़ख में डाला जाएगा। परफेक्ट। अच्छा दूसरा सर, आप देखें जिससे हमें बताया जाता है कि 4 मेन फरिश्ते हैं। हजरत जिब्राइल है, ठीक है, उनका एक फंक्शन है। हजरत मिकाइल है जो जिनका काम है कि बारिश बरसाना, ठीक है। अभी तो देखिए टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। अभी सपोज यूएई में ले लें या दुनिया की अदर जगह ले लें, तो अभी तो क्लाउड सीडिंग कहते हैं इसे, डिफरेंट वो क्या नाम है, एक वे से वो मसनूई वो क्रिएट करते हैं बादल वगैरह, तो बारिश होती है, तो फिर वो फंक्शन थोड़ा सा वो मतलब उनका फंक्शन खत्म हो गया क्या हजरत मिकाइल का? नहीं उनका फंक्शन खत्म नहीं हुआ। देखिए डीपर फिलोसॉफिकल लेवल पे एक थ्योरी है, वो ये है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो फरिश्ते ही हैं।
इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स से बारिश होती है, किस तरह से आबी बुखारात जो हैं वो ऊपर जाते हैं और किस तरह से फिर बारिश, वो बादल उनके बनते हैं और बारिश होती है। तो ये बेसिकली जो ये लॉज हैं ये फरिश्ते ही हैं बेसिकली। नाउ आई डोंट नेसेसरली से कि ये बात ठीक है, लेकिन ये बात चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ सर, मैं आपसे सिर्फ एक करेक्शन चाहता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में ये आया कि ये जो अरबी का लफ्ज़ है ना मलक या मलाइका, तो इससे मुराद कुव्वतें भी है। तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये डिक्शनरी की मैं बात कर रहा हूँ। पॉसिबल है कि ये बेसिकली वो हो सकता है, पर अगेन इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि मैं उस चीज़ को पूरी तरह से समझे बगैर मैं उस पर दावा कर दूँ कि ऐसा ही है। लेकिन ये चीज़ जो है ये तो कन्फर्म्ड है, 100% है कि अल्लाह ताला अपने काम मुख्तलिफ जो मैकेनिक्स हैं उनके ज़रिए लेता है। तो जैसे बारिश इस दुनिया में होती है तो उसका एक मैकेनिज्म है, तो जो आर्टिफिशियल बारिश है उसके लिए भी नेचुरल मैकेनिज्म्स तो चाहिए ही। तो नेचर के अंदर रह के तो हम कितनी ही चीज़ों के अंदर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बीमारी के ख़िलाफ़ हम दवाई बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम अब सफ़र अपना जो है उसको महदूद कर रहे हैं, उसके वक्त को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहाज़ बना ली और इस तरह की चीज़ें बना ली। तो वो लॉज ऑफ नेचर के अंदर रहते ही जो हमें जितनी अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है उसके अंदर ही हम एक सर्टन मैनिपुलेशन करके हम बारिश भी बरसा सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट टू से कि फरिश्ते का रोल उससे ख़त्म हो जाता है। जो फरिश्ते का अपना लॉज ऑफ नेचर के अंदर रहते हुए जो उसका अपना जो एक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। देखिए ना, रिस्क अल्लाह ताला देता है, लेकिन हम खाद पैदा करते हैं रिस्क से, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हें तुम्हारी अकल के मुताबिक मिलेगा। दुनिया में जो भी तरक्की करेगा वो अपनी जो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई अकल है जितनी वो इस्तेमाल करेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मुसलमान है या वो नहीं है। प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर है। तो लॉज ऑफ नेचर के अंदर रहते हुए सर्टन नेचुरल चीज़ों को हम मैनिपुलेट करके नतीजे थोड़े से मुख्तलिफ अखज़ कर लें, ये तो बहुत अरसे से होता चला आ रहा है। जी, ट्राई टू बी लर्न। मेरा ख्याल है कि आपने एक नहीं दो क्वेश्चन करनी है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी तशरीफ लाते रहिएगा। ओके, मैं एग्जिट करता हूं, अगर कहते हैं तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। जी, बहुत शुक्रिया, आप दोबारा तशरीफ लाइए नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और मैं तमाम अहबाब का, वो मुसलमान थे या एथीस्ट तौर से, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आदाब का ख्याल रखा, और हम इसी तरह का एक माहौल चाहते हैं ताकि गुफ्तगू होती रहे, क्योंकि इल्मी गुफ्तगू से ही हम कुछ सीख सकते हैं। जहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया जाए अपने मुखालिफिन के लिए, तो वहाँ पर सीखने सिखाने की बजाय बदतमीज़ी हुआ करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह राजा साहब के चैनल के ऊपर जितने मुल्हिदीन भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके भी इस मामले में शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट तशरीफ़ लाएंगे वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम एथीस्ट टू बी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से, लेकिन आपकी आवाज़ में थोड़ा सा इशू आ रहा है, माइक अपने करीब कीजिएगा सर। जी, अभी आ रही है आवाज़ आपको? हाँ, आप कुछ बेटर हुई है, बात कीजिए। जी, कैसे भाई, कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, कैसे भाई, ऐसा है कि एक तो क्वेश्चन हैं मुझे आपसे पूछने हैं। पहला सर ये है कि मुझे एक चीज़ बताइए कि जो अमेरिका है, ये अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है, जी जी, इसका जिक्र इस्लाम में कभी क्यों नहीं हुआ? क्या मतलब जिक्र नहीं हुआ? मतलब कि जैसे अगर इस्लाम है, हमारा दीन है, हर चीज़ का इल्म है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं और उनको अल्लाह पाक ने हर तरह का इल्म दिया है, अब जैसे डायनासोर्स हैं, उनका कोई जिक्र, कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती अपने इस्लाम में। अमेरिका पहले भी एग्जिस्ट करता था, उसका कोई रेफरेंस, कोई चीज़ कभी जिक्र नहीं हुआ, ना कुरान में, ना हदीस में, किसी चीज़ में नहीं। वाई? देखिए, इस्लाम जो है वो कैटलॉग नहीं है, या कुरान कैटलॉग नहीं है कि उसमें हर एक चीज़ को वो कैटलॉग किया जाएगा कि ये भी एग्जिस्ट करती है, ये भी करती है। इंडिक्टिवली बातें हैं, और कुरान जो है वो एड्रेस करता है अपने जो क़ारीन हैं, अपने सामीन हैं, इंसान हैं, उनको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स देता है उनको कि जहाँ तक वो इंसानियत जाएगी वहाँ तक वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे। बहुत चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी, और ये तो बड़ी एक नॉर्मल बात है कि इवन यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा जो आपको समझ आएगी, आप मुझसे उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे जो मुझे समझ आएगी। अब वहाँ पे, और ये बात भी ठीक है कि कुरान में कुछ एब्स्ट्रैक्ट तरीक़ों से कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो कि बाद में जो है वो उस ज़माने के लोगों के लिए वो समझनी मुश्किल थी, लेकिन बाद में वो ठीक साबित हुई ना। जैसे मिसाल के तौर पे फ़िरौन की लाश है, उसको एक मुकर्रर वक्त तक हमने महफूज कर दिया, एंड इट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि ये कैसे हो सकता है। या ये बातें कहना कि जो इंसान का दिल है उसके नॉन
जो कार्डियोवैस्कुलर के सिस्टम के अंदर रहते हुए जो उसके फंक्शंस हैं, उसके अलावा उसके फंक्शंस बताए कि ये गौर व फिक्र, तदब्बर में, जज्बात में इसका अमल दखल है। 1991 तक हम समझते थे कि नहीं ये सारी बात गलत है, लेकिन 1991 के बाद हमें समझ आ गई है कि नहीं, दिल के अंदर पूरा एक दिमाग होता है, 40,000 उसमें न्यूरो सेल्स होते हैं जो कि दर्दों को प्रोसेस करते हैं, डिसीजन मेकिंग में दिमाग को असिस्ट करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ फंक्शंस टू प्ले। तो इसके यानी कि एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बहुत सी चीज़ों को कहा गया जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो साबित हुई। लेकिन कुरान की हकानियत, इस्लाम की हकानियत ना डायनासोर से ठीक साबित होती है, गलत साबित होती है, ना ये साउथ अमेरिका से ठीक साबित होती है, गलत साबित होती है। जो आपको सोल्यूशन दे रहा है आपके एवरीडे लाइफ के लिए, असेस देम। इसकी जो मेटाफिजिक्स है उस पर बात करें, जो इसके एथिक्स हैं उस पर बात करें, जो इसकी प्रैक्टिस है उस पर बात करें। अगर तो कुरान ने कोई जोग्राफिया की किताब होने का कोई उसने या तारीख की किताब होने का उसने दावा किया हुआ हो तो फिर तो आपके क्वेश्चंस जो हैं ये वैलिड हैं। अगर कुरान ये दावा नहीं करता और कुरान आपको ये बताता है कि जो इंसानियत के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको सारी बता के दी गई हैं इसमें, देन आई डोंट थिंक कि अननेसेसरी चीज़ों में हम अपना वक्त ज़ाया करें। चलें ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये है ना कि एक दावा है हमारे उलमा का कि भाई जो हमारा कुरान है उसमें दुनिया जहान की हर चीज़ का इल्म उसके अंदर है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से आया है और खुदा ने ही सब कुछ बनाया है, तो खुदा जिसने बनाया उसके पास तो हर चीज़ का इल्म है। तो कुरान के अंदर मतलब क्योंकि ये खुदा की तरफ से है तो इसमें हर चीज़ का इल्म है, कोई ना कोई क्लू या गैस मौजूद है। तो इसलिए एक माइंड में एक चीज़ आती है, जैसे सूरह रहमान की आयत भी है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, ठीक है। अब जैसे दोनों मशरिकें दोनों मगरिबें, आज तक इसकी ज़मीन है, इसका क्या मतलब है? ये आज की ज़मीन में तो ये साबित होता है कि अगर आप हर रोज़, इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक कोलाज भी एक पब्लिश हुआ था 365 दिनों का, कि हर रोज़ एक ही जगह से तो सूरज के जो हमें जो ह्यूमन परसेप्शन है कि सूरज थ्रू होता हुआ जो हमें नज़र आता है, और हम जो समतों का तायुन है वो सूरज से करते हैं, अगरचे समतों का कोई बरह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो हमारी एवरीडे एक्सपीरियंस है उसमें तो हम सूरज को ही एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। तो उसमें एग्जैक्ट 2 मशरिक़ें ही हैं पूरे साल में। अगर आप देखें कि वो किस तरह से सूरज हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा वो अपने जो ज़मीन के एक्सेस जिस तरह से मूव करते हैं, तो उसके साथ हमारी परसेप्शन के मुताबिक वो थोड़ा मूव करता है, तो उसमें 2 मशरिक़ें ही हमें नज़र आती हैं, 2 मगरब ही हमें नज़र आते हैं, और मशरिक़ैन व मगरिबैन एक से ज़्यादा का जिक्र हो रहा है वो हमें नज़र आता है। ये आप ह्यूमन परसेप्शन में आप इसको देख सकते हैं। दूसरी जो आपने बात कही, और सिर्फ ये इसका ताल्लुक हमारी इस परसेप्शन से भी नहीं है, इवन कायनात में भी अगर आप जाके देखते हैं तो यू विल रियलाइज कि एक्चुअली जो समतें हैं वो इस तरह से ही हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं समतों के हवाले से कि ये चीज़ इसकी कितनी ज़्यादा डायमेंशंस हो सकती हैं, आपके नज़दीक वो कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप जाएं और जिस तरफ मर्जी आप ट्रैवल करना शुरू कर दें आप साउथ की तरफ ही जाएंगे? जिस तरफ मर्जी ट्रैवल करना शुरू कर दो साउथ की तरफ ही जाऊंगा। आई हैव नो आइडिया। नॉर्थ पोल, वहां से आप जिधर भी जाएंगे ना आप साउथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि दैट्स राइट। और फिर उसके आप जिस इधर से जाएं उधर से जाएं आगे से जाएं आप साउथ की तरफ ही जाएंगे। लेकिन आप वो साउथ की तरफ जाएंगे तो आप आइदर मशरक की तरफ से जाएंगे या आप मगरब की तरफ से जाएंगे, जहाँ आप साउथ की तरफ ही रहे हैं तो वो इस तरफ ही पूरे का पूरा एक मशरक है और इसकी तरफ ही पूरे का पूरा एक मगरब है। आप जहाँ जिस तरफ मर्जी तरफ रहे हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे सफेयर में वो सारा मशरक है, पूरे के पूरे सारे मगरब है। नंबर ऑफ अदर एग्जांपल्स बाय व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड दिस। बाकी जो आपने एक बात कही कि वो कुरान में हर चीज़ का जिक्र है, ये बिल्कुल कुरान में है कि कुरान में हर खुशकोतर का जिक्र है। लेकिन एक बात याद रखें कि कुरान की हर आयत हर आदमी के लिए नहीं है। ये जब आप इस्लाम की जो एवरीडे जो सतही गुफ्तगू है, जब आप उससे ऊपर जाते हैं, उलमा के लेवल पे जाते हैं जिन्होंने इस्लामिक थियोलॉजी को समझा है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी को समझा है, जब आप उनके पास जाते हैं तो वहाँ आपको जो गुफ्तगू मिलती है वो इस तरह की होती है कि कुरान की हर आयत हर इंसान के लिए नहीं होती है। तो ये जो आयत है ना कि इसमें हर खुशकोतर का जिक्र, ये मेरे और मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं है, ये उनके लिए इसका जिक्र है जिन पे अल्लाह ताला ने कुछ कुरान के राज अपने खोले हुए हैं, उनकी अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनका फरमान है कि कुरान के 3 दर्जे हैं। जो सबसे निचला दर्जा है उसके वो इल्म तहरीर है, कुरानी इल्म के 3 दर्जे। सबसे निचला जो है वो इल्म तहरीर है जो आम इंसानों के लिए खुला हुआ है, उसके ऊपर और दर्जे हैं, उसके ऊपर और दर्जे हैं। तो वो हर इंसान के लिए वो उस तरह से नहीं है। एक्सपर्ट्स जो अपनी अपनी फील्ड के हैं वो उनके लिए है। बहुत से लोग हैं, मिसाल के तौर पे मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का, मुझ पे भुगता हुआ है। ये हम मटीरियलिस्ट हैं उनको हम नहीं समझा सकते। मैं अपने आपको अपनी ज़ाती में मैं एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक रात में 2 दफ़ा 104 का बुखार हुआ, 104 से भी एक्सीड कर गया एक रात में 2 दफ़ा। जब पहली बार हुआ तो मैं ट्रेनिंग हमारी यहाँ लाहौर में चल रही थी और मैं यूके से चूँकि रिसेंटली पाकिस्तान में मैं मूव हूँ तो मैं
प्यार से खुद को प्लास्टिक का पाकिस्तानी कहता हूँ मैनी वेज कि जब आप 20-22 साल पाकिस्तान से बाहर रहे तो फिर थोड़े से लंग्स और ये सारा सिस्टम थोड़ा सा नाजुक हो जाता है पाकिस्तान में थोड़ा सा वो। तो मैं अभी पूरी तरह से मैंने उसको अभी मैं यूज टू नहीं हुआ, तो मुझे वो स्मोक का एक्सपोजर हुआ, बुखार और ट्रेनिंग करके खैर मैं जैसे भी घर पहुंचा, अब चेक किया घर वालों ने तो वो 104 से भी एक्सीड कर रहा है बुखार, तो अब क्या करें ये करें। तो मैं नीम बेहोशी की हालत में उन्हें एक ही बात कह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब को कॉल करें, वो एकदम है करेंगे, मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊँगा, आई विल डू इट। अच्छा, मेरी जो फैमिली है यहाँ पे, मेरी मिसेस जो हैं वो अहले हदीस हैं, वो थोड़े से ज़्यादा जो होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पे हैं, दम को मानते हैं लेकिन एकदम से नहीं, दम से क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा करो तो सही, मुझे इतना ही बस याद आ रहा है। वो मेरे वालिद साहब ने वो दम किया, टेलीफोन पे ही किया, और दम ख़त्म हुआ, दोबारा बुखार चेक किया तो मेरा 102 से नीचे आया हुआ था। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद मुझे फिर बुखार हुआ, फिर वो दम, फिर सारा। अब किसी मटीरियलिस्ट आदमी को ये बात नहीं समझा सकता, आई कैन नॉट। और वो जो उन्होंने पढ़ा कुरान में हम हर रोज पढ़ते हैं, बट द फैक्ट कि समथिंग हैज ओपनड अप अपॉन हिम व्हिच इज नॉट ओपन टू अदर पीपल। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वही कुरान की आयत पढ़ते हैं जो बाकी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो उनके पास तासीर होती है वो किसी और के पास नहीं होती है। सो द पॉइंट वी आर मेकिंग इज कि ये अक्सरियत है साइल में तहरीर कुरान जो है ये सब पे खुला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप रूहानियत में आगे जाते हैं इट बिकम्स अमेजिंग कि कैसे कैसे लोगों के मसाइल हल हुए हैं। और मैं सिर्फ अपने आप, मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ, मैंने बहुत से और लोगों की ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि कुरान की आयत से उनके मसाइल हल हुए हैं। इट्स अ डीपर यू गो इन देयर मोर एंड मोर थिंग्स यू फाइंड। तो ऐसा नहीं है कि बस ये बस अल्लाह ताला ने एक मैनुअल दे दिया है सबके लिए, तो हम बस आज के बाद तुमने इस पर अमल कर लेना है और सब ने ऐसा ही करना है। वो बेसिक है, वो प्राइमरी है। जब आप कुरान की पीएचडी में जाते हैं, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट ओपन्स अपॉन यू। राजेश साहब, ये काइंडली क्वेश्चन जो है, और मैं आपसे चीज़ तो भी माजत चाहता हूँ, आप बहुत से दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आपके, हमने काफ़ी क्वेश्चन ले लिए। राजेश साहब, ये क्लियर कर दीजिएगा, कुरान इज सिंपल एंड फॉर एवरीवन, कुरान मेक दिस क्लेम, आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट राजेश साहब। हाँ जी, कुरान की एवरीडे लाइफ के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सिंपल हैं। सूरह कमर में जो है ये गालिबन 4 दफ़ा अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि कुरान के जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं ना, ये इन्हें 4 दफ़ा जो बात कही है कि आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया कि आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। ये जो हमारे मुनकरीन हदीस हैं वो भी ये बात कहा करते हैं कि कुरान जो कहता है कि आप बड़ा वो सिंपल है सबके लिए, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो सूरह कमर में जो अल्लाह ताला ने बात बार बार कही कि आप इसे सिखा दें, आप बता दें, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो कुरान के 2 हिस्से हैं, एक उसका इल्म शरीयत है और एक उसका इल्म तारीख़ है। जो उसका इल्म तारीख़ है कि फ़िरौन के साथ क्या हुआ, ये हुआ, सिंपल बातें हैं। जो शरई बातें हैं वो जनाब रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दी, वो बड़ी सिंपल बातें हैं। जैसे कुरान में हुक्म है कि नमाज पढ़ो, जनाब रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि कैसे पढ़ो, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, कि वो सिंपल बातें हमें समझ आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुरान में ये भी है कि कुरान की कुछ आयत जो हैं वो मुतशाबिहात हैं और कुछ मुहकमात हैं। वो जो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं उनके दिलों में ही बीमारी हुआ करती है। तो वो कुरान की आयत तो मौजूद हैं कुरान में, लेकिन वो हर किसी के लिए तो नहीं है। चूंकि हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि उनसे थोड़ा दूरी रहा करो, वरना वो उन जिनके लिए है ना वो उन तक रहने, तो वही तुम्हें एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आगे क्या है, वो हर आदमी के लिए नहीं है। तो ये भी कुरान ही कह रहा है कि मुतशाबिहात और मुहकमात जो हैं वो अलग-अलग से हैं। ये सिंपल बात, ये बिल्कुल सही है। आपकी एवरीडे लाइफ में कुरान की आपको कोई ऐसी बात नहीं लगेगी जो आपको समझ ना आए, एवरीडे लाइफ में आपको कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। बट देयर आर सम वेरी पावरफुल, उसमें जो ऐसी सीक्रेट की बातें हैं, जिसमें कायनात के रमूज़ हैं, जिसमें इंसानी जिस्म के अंदर के हमारे रमूज़ हैं। मैं अभी कल परसों हमारी एक ट्रेनिंग चल रही है एपिजेनेटिक्स की के हवाले से है कि किस तरह से हमारे जो सिग्नल्स हैं, जो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, पर्टिकुलर प्रोटीन होता है हमारे सेल की मेम्ब्रेन पे, कि वो किस तरह से बाहर के माहौल के साथ इंटरेक्ट करता है और वो जिस हमारे दिमाग तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, उसके बाद फिर हमारा एक मैकेनिज्म है जो फैसला किया करता है, विच इज़ टू से कि हमारी सोचें सारी की सारी हमारे दिमाग के अंदर नहीं आती बल्कि बाहर से उनको हम कैच करते हैं। वही बात है जो सूरह शम्स में अल्लाह ताला ने कही कि इस पे अच्छे ख्यालात और बुरे ख्यालात आते हैं, और फिर वही कामयाब होता है जो अच्छे ख्यालात को पकड़ता है, जो बुरे। अब ये आम आदमी के लिए बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जिस आदमी ने न्यूरो साइंस पढ़ी है, जिसने एपिजेनेटिक्स पढ़ी है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस दैट पर्सन। सिमिलरली ऐसे ही अल्लाह ताला की एक आयत है कुरान में कि ज़िंदगी जो है वो अपना लफ्ज़ मेरे ज़हन से स्किप हो गया है, अली जो हम अगर कहीं कत्ल हो जाए तो उसकी एक दय्यत होती है और एक उसका कसास। अब देखिए मैं वाकई ये बाल जो है ना, ये किसी चीज़ की इंडिकेशन है कि अब उम्र के उस हिस्से में जा रहा हूँ। ये सब कसास, ये ज़िंदगी कसास में है। अब कोई भी आदमी इसको पढ़े तो वो कहे कि कसास में तो जान दी जाती है, उसमें ज़िंदगी कैसे है?
لیکن جو لیگل جورسپروڈنس کو جانتا ہے اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ قصاص لیتے ہیں تو کیس کلوز ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ انتقام لیتے ہیں تو کیس آگے بڑھتا رہتا ہے کہ انتقام کا انتقام لیا جاتا ہے، اس کا انتقام لیا جاتا ہے، کتنی زندگیاں اور ہیں جو جاتی ہیں، لیکن قصاص ایسا ہے کہ جس سے اس میں زندگی ہے، کتنے اور لوگوں کی زندگی بچ جاتی ہے. تو بظاہر تو یہ چیز جو ہے یہ لاجیکل لگتی ہے، بٹ وٹ یو انڈرسٹینڈ اٹ میکس مور سینس. تو اس کا یہ مطلب ہے بیسیکلی. جی ماشاء اللہ راجہ صاحب آپ نے بہت خوبصورتی سے یہ بیان فرما دیا کہ قرآن حکیم کا ایک حصہ جس کو ہر بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اس کے محکمات ہیں، اور اس میں کیونکہ احکامات ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے وہی ضروری چیزیں ہیں. ایک انسان بہت بیٹر زندگی گزار سکتا ہے کہ قرآن کے محکمات کو وہ اپنے سامنے رکھے، اور اس کے لیے اس میں سمجھنے کا کوئی اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں، بڑی آسان سی باتیں ہیں. اور کچھ کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں وہ علماء کے لیے ہیں. قرآن حکیم نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کو نہ پتہ چلے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کریں، راسخون فی العلم سے پوچھ لیا کریں. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت مثالوں سے یہ بات واضح کر دی. راجہ صاحب ہمارے ساتھ بہت سے دوست موجود ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ سب سوال پوچھنے والے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب دوستوں کو باری باری ٹائم دیں اور ان کے سوالات لیں. اب ایتھیسٹ نہیں ہیں اور انہوں نے کم از کم یہ ایکسپیرینس تو سر کر لیا ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں ہے جو ان کے ہاں ہے. اب کوئی مسلمان، مجھے خود ایکسپیرینس ہوا ہے، میں ان ملحدین کے چینل پہ خصوصاً وہ بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی اس کے چینل پہ 2 دفعہ جا چکا ہوں. مجھے بڑا برا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ مسلمان کو اپنی تھیولوجی یا اپنی بات سامنے رکھنے کے لیے موقع ہی نہیں دیا جاتا اور بدتمیزی کر کے اس کو کک کر دیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے کم از کم یہ یہاں پر دیکھ لیا کہ یہاں ماحول ایسا نہیں ہے، شاید وہ ڈر رہے ہوں. تو سر میری آپ سے یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس موضوع کو دوبارہ رکھا جائے اور پھر سے پروگرام، میرا خیال ہے کچھ 4-5 پروگرام ہمیں کرنے چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم انا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہوگا، مجھے بھی کوئی نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کو دوبارہ چانس دیں. ہو سکتا ہے یہ پہلے دیکھ رہے ہوں، ہمارا ٹیمپرامنٹ دیکھ رہے ہوں کہ یہ کیا بیہیو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ عادی جس طرح کی گفتگو کے ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ڈرو کہ شاید ہمارے ساتھ بھی یہی بیہیو کریں اور ہماری بات ہی نہ سنی جائے. تو یہاں پر انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے بڑے تحمل سے سنی ہیں باتیں تمام ایتھیسٹ کی، اور اب معذرت کے ساتھ سر کوئی بھی ایتھیسٹ نہیں ہے جو ہمیں کنونس کرنے کے لیے آ جائے گا. تو سر اب میں اپنے دوست احباب جو بیٹھے ہیں، ہم انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے. اب اختصار کے ساتھ شاید ایک کویسچن ہم آگے لیں، اور میں بالکل جی ایک سے زیادہ میں اجازت نہیں دوں گا کسی بھی دوست کو، کیونکہ اور یہی جو اس وقت دوست موجود ہیں ان کے علاوہ اور کسی دوست کو فی الحال لیا بھی نہیں جائے گا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے. تو اتحاد خان سے بات ہو چکی ہے تو ابھی بھی نہیں ان سے ہوئی نہیں تھی، انہوں نے اپنا ٹائم ہمیں دے دیا تھا، تو پہلے میں نہیں کروں گا. جی السلام علیکم اتحاد خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر جسٹ 1 کویسچن. کویشچنز تو بنتا بھی نہیں ہے، ویسے بھی یہ لوگ خود میں کنفیوز ہیں، خود ایویڈنس پریزنٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ خود ہی کنفیوز رہتے ہیں. میں بھی ایک ٹائم میں تھا کنفیوز، لیکن میں ان لوگوں سے بھی ایویڈنس مانگتا تو یہ لوگ نہیں دے پاتے. یہ چیزوں کا اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس. سر آپ یہ بتائیں نا کہ ایویڈنس ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے دے دیں یار، آپ بھی کیسی توقع رکھتے ہیں؟ جی ایسا آپ مان لیں یا ایسا آپ ہو سکتا ہے، یہ 2 چیزوں میں ان کا وہ اس لیے مان لیں. دلیل دیکھیں نا، یہ چھوٹی دلیل تو نہیں ہے، آپ نے کبھی ان کی دلیل پہ غور نہیں کیا، کیونکہ یہ ملحد کہہ رہے ہیں اس لیے ہمیں مان لینا چاہیے بھائی، کیونکہ یہ ملحد ہیں، یہ اتھارٹی ہے، ہمیں مان لینا چاہیے بھائی. دلیل کس بات کی؟ آپ کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ دلیل دے ہی نہیں سکتے ہیں، اصل میں ان کا وہی چیز ہے. اور یہ لوگ ایک بھائی جو آئے تھے کہ 4000 ریلیجن ہے، میں ان میں سے کون سا مانوں. لیکن ہاں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ فیکٹ آپ لے کے آ جائیے، اگر وہ فیکٹس ہمارے لاجک پہ صحیح بیٹھتے ہیں تو ضرور مانیں گے. یہ ملک احسان علی صاحب آپ کی بات پہ کمنٹ کر رہے ہیں. ملک احسان علی صاحب بہت شکریہ. یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ہے 1+1+1=1، یعنی کہ یہ ٹرینٹی والی بات ہے ملحدوں کے ہاں بھی، کہ یہ 3 ہیں، ان تینوں کو جمع کرو تو 1 بنے گا. آپ بلیو نہیں کرو گے، مجھے ایک عیسائی نے، میں بنگلور میں رہتا ہوں، تو ایک وہاں پہ دعوت دیتے ہیں، کرسچن بھی دیتے ہیں، مسلم بھی دیتے ہیں. تو وہاں پہ کرسچن آ کے میرے کو دعوت دیا، تو میں ٹرینٹی پہ ایک سوال کیا کہ آپ جیزس کو کس میں مانتے، پروفٹ مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں؟ تو وہ بولتے ہیں خدا مانتے ہیں. میں نے کہا خدا اتنا مجبور ہے کہ وہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہو کے دعوت دینے آیا ہے؟ تو انہوں نے آپ سے یہ نہیں کہا یہی روحانیت ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا یہی روحانیت ہے؟ اور دیکھیں آپ نہیں سمجھ سکتے اس بات، آپ میں اہلیت نہیں ہے. وہی چیز میں بولا کہ ایسا خدا جس کو انسانی ضرورت ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جو انسانی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ اب ایک وقت کے لیے آئے اور پھر خدا چلے گئے تمہارے. ابھی کہاں رہ گئے آپ کے خدا؟ آپ نے آپ کو پتا ہے ان کے یہاں کہ وہ پھر ان کو شہید کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا 3 دن کے لیے. خدا جو ہے وہ ختم ہو گیا، مرا رہا. دوسرا کوشچن یہ آتا کہ ہمارے سن کے لیے وہ سولی پہ چڑھ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ کے لیے تو چڑھ گئے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب کوئی بھی گناہ کروں میرے سارے معاف. چلے اپنا اتحاد خان صاحب بہت شکریہ سر.
अब बहुत बहुत शुक्रिया दूसरे दोस्त साहब आप बैठे हैं। हाँ चलो चलो चलो, टाइम बहुत लिमिटेड है, शायद ही का टाइम हो जाएगा फिर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम फिलॉसफी इन डेप्थ साहब, जस्ट वन क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से लेने के लिए, और मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि मैं फिर से आया, क्योंकि नहीं, मैंने कोई कहा बात था कि मेरे जहन से एक चीज़ निकल गई है। तो सर मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि ये जो फ़िलोसॉफ़िकल प्रूफ है, क्योंकि सर मुझे लगता है कि जो फ़िलोसॉफ़िकल प्रूफ है ना सर, क्योंकि जो एथिस्ट है ना सर, वो प्रूफ का जो नोशन है ना उनका, वो सर एक कोहेरेंट नोशन नहीं है। जी क्योंकि वो कहते हैं कि फ़िलासफ़ी में खुदा का कोई सबूत नहीं है, साइंस में कोई सबूत नहीं है। तो सर मेरा सवाल जो मेरे जहन में है, तो फ़िलासफ़ी में तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई डिडक्टिव आर्गुमेंट ऐसा है कि जिससे नॉलेज, जिससे जो है ना वो सॉलिप्सिज्म से आदमी निकल सके। तो एथिस्ट कैसे निकले हैं सर सॉलिप्सिज्म से? आई थिंक एथियस्ट का देखें, हमें जो राइज है वो हमें समझना चाहिए जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें, क्योंकि हुआ बेसिकली ये है कि एथियस्ट्स जो मॉडर्न एथियज़म जो है, वैसे तो ये बहुत पुरानी फ़िलासफ़ी है, ये मुख्तलिफ इसके जो ऑफशूट्स हैं वो हमें मिलते रहते हैं, लेकिन जो मॉडर्न जो इसका जो राइज हुआ है वेस्ट में, वो हुआ है क्रिश्चियनिटी की वजह से। उसकी मैं अब आपको बड़ी थोड़ी सी मैं आपको जल्दी से उसकी मैं एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, ब्रीफ हिस्ट्री कर रहा हूँ, बहुत तफसील के साथ नहीं। कि हुआ ये कि वेस्ट में बहुत सी चीज़ें जो थी एरिस्टोटल की और इस तरह के फिलोसफर्स की जो चर्च की सुपरविजन में थी, वो गलत साबित हुई, पर्टिकुलरली जब हीलियोसेंट्रिक मॉडल सामने आया कोपरनिकस का। तो अगरचे वो कोपरनिकस के मरने के बाद आया था, लेकिन इट वाज अ बिग थिंग। तो उससे एरिस्टोटल और बड़े बड़े फिलोसफर्स वो गलत साबित हुए। तो एट दैट स्टेज जो नेचुरल फिलोसफर्स हुआ करते थे वही काम करते थे, नेचुरल फिलोसफर्स ही होते थे। वर्ड साइंटिस्ट जो है ये 1833-1834 के ज़माने में पहली दफ़ा ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। उससे पहले के जो साइंटिस्ट थे, न्यूटन और ये जितने थे, इन सबको जो है कोई नेचुरल फिलोसफर था, कोई कैसा फिलोसफर था, कोई कैसा फिलोसफर, कि ये कोई साइंटिस्ट्स काम साइंस ही करते थे, दे डिड साइंस बट दे वर नॉट साइंटिस्ट्स सो टू स्पीक। तो जब ये फिलोसॉफिकल राइज क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, चर्च के खिलाफ शुरू हुआ, एक रिबेलियन स्टार्ट हुई कि तो चर्च तो हमें जो बता रहा है कि जो ज़मीन है वो अपनी जगह पे खड़ी है और सूरज आगे पीछे सारा, ये तो सारी बातें बड़ी अजीब नज़र आ रही हैं हमारी। तो उसके बाद फिर चर्च, जब ये साइंस का राइज हुआ, नेचुरल फिलोसफी जो है वो ऐसा साइंस में कन्वर्ट होना शुरू हुई, तो दैट वाज द टाइम व्हेन जो चर्च है वो अपनी अथॉरिटी को, अपनी क्रेडिबिलिटी को उसने लूज करना शुरू कर दिया। एंड देयर इज अ गुड रीजन कि उसने क्यों शुरू किया लूज करना। उसने इसलिए लूज करना शुरू किया, और ये रिसेंटली मेरी अभी एक प्रीस्ट है उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी बातें एक्सेप्ट की कि क्रिश्चियनिटी में, यानी कि जो ईसाइयों के साथ बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं मामला हुआ, वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तालीमात को पूरा करके इस दुनिया से नहीं गए। जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुरान पूरा नाज़िल हो गया, वो आयत भी आ गई कि दीन तुम्हारा मुकम्मल हो गया है, उसके बाद एक दो आयत और उसके बाद काम ख़त्म हो गया। फिर जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अर्सा इस दुनिया में रहे, फिर उनका विसाल हो गया। तो हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज वो पीछे छोड़ के गए, जिसमें से हम मुख्तलिफ सिस्टम्स डिराइव कर सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम के तो मानने वाले ही थोड़े थे, और उसी में ही उनको उनके अकीदे के मुताबिक उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। अब करें क्या? बाद में जब रोमन्स थे, जब वो ईसाइयत की तरफ आए, तो अब एक सिस्टम तो चलाना है ईसाइयत के तहत ना, तो वो तो ईसा अलैहिस्सलाम छोड़ के ही नहीं गए। अब हम क्या करें? तो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स थे उसको ही क्रिश्चियनाइज कर दिया। जैसे पॉन्टिफ का कॉन्सेप्ट, जो बड़ा पोप होता है, ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये उस जमाने का जो पेगन रिलीजन था, ये टाइटल ही उसका हुआ करता था, उसी को ईसाई कर दिया गया। चर्चेस जो ज़माने के थे, जो मोहब्बत खाने थे, इबादत खाने थे, वो पेगन रिलीजन्स के होते थे, उन्हीं को चर्चेस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वो एक नेसेसिटी के तहत हर चीज़ को ईसाइयत के धारे के अंदर ले आए। ऐसा नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे, वो एक पॉलिटिकल नेसेसिटीज़ थी, कल्चरल नेसेसिटीज़ थी, कि उसको वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम में क्रिएट हो गया। तो जब साइंटिस्ट ने उसको चैलेंज करना शुरू किया, तो एथियस्ट के पास कोई बात ही नहीं थी। वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहे, कॉम्प्रोमाइज़ पे, हत्ता कि ये है कि वो चर्च जिसने अपना डार्विन को चैलेंज किया हुआ था, बहसें अरेंज कराई थी कि तुम्हारी जो थ्योरी है ये गलत है, जिसने गैलीलियो को इतनी सख्त सजाएं दी हुई थी, वो खुद बाद में मान गया कि हाँ इवोल्यूशन जो है वो हुई है। बहुत से कैथोलिक्स वो इवोल्यूशन को मानते हैं, क्योंकि अगेन उसके पीछे कोई सॉलिड रिलीजियस वजह नहीं थी, उसके पीछे सिर्फ एक आइडिया था जो कि उस
وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس آئیڈیا میں چیزیں ایڈ کرتے رہے, کتابیں نئی نئی آتی رہیں. کنگز جیمز نے آ کے تو بائبل کا مسئلہ ہی حل کر دیا, عیسیٰ علیہ السلام کے خون سے سب کے گناہ معاف کر دیے کہ جو مرضی کرو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آؤ, مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں, ذمہ داری ختم. اور اس طرح کی وہ بہت سی ایسی حرکتیں جب وہ ٹینیبل نہیں رہی تو پھر آہستہ 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 وہ جو ایتھیزم ہے وہ رائز کر گیا, اس لیے کہ دوسری طرف جو ہے کوئی لاجیکل ایسے آرگومنٹس نہیں تھے جو کہ ایتھیزم کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. اور ایتھیزم اس لیے رائز پہ جا رہا تھا کہ کرسچینٹی ختم ہو رہی تھی. کرسچینٹی ختم ہو رہی تھی تو ایک وائڈ بن رہا تھا, اس وائڈ کو پھر اس نظریے نے فل کرنا شروع کیا کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ ہے. تو یہاں سے ان کا رائز ہوا. پھر جب یہ اسلام کی طرف آئے تو یہاں پہ ان کو اسٹرگل اس لیے ہو رہی ہے, جس کا پرویز ہود بھائی نے بھی اپنے ایک لیکچر میں ایکنالج کیا کہ ہم نے بھی بڑی کوشش کی لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی, لیکن یہاں پہ نہیں ہم کر سکے, اور انہوں نے بھی اس کی جو وجوہات کچھ بتانے کی کوشش کی. لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں ایک کمپلیٹ شکل میں ملا ہے, اسلام کے اندر ڈیولپمنٹ موجود ہے, وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیوائن انسپریشن سے ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از وائی وی آر اوکے ود اٹ, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کسی چیز سے. تو جو ایتھیزم ہے بیسکلی یہ ایک نیسیسٹی تھی کہ اگر عیسائیت غلط ثابت ہو رہی ہے تو پھر ہم کس طرف جائیں, اینڈ دی آنسر واز ایتھیزم, اس لیے کہ عیسائیت کے خلاف جو تھے لوگ وہ تھے ہی ایتھیسٹس, اینڈ دیئر فور اٹ جسٹ became bigger and bigger. لیکن وہ یورپ کے باہر اس لیے اسٹرگل کر رہی ہے, اسلام میں اس لیے اسٹرگل کر رہی ہے, فار ایگزامپل پینیٹریٹ نہیں کر پا رہی, بیکاز وی ہیو دی آنسرز, وی آر ہیپی ٹو ہیو لاجیکل, وی آسک کاؤنٹر کوسچنز. ہم ایک طرف بتاتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ اس نے ایک جو یونٹ تھا اسی کو ایکسپینڈ کیا, زمین اور آسمان ایک یونٹ تھے جس کو ہم سائنس میں سنگولیرٹی کہتے ہیں, کہ اسی کے بعد ریپڈ ایکسپینشن اسٹارٹ ہوئی ہے. جب ہم پہ اعتراض ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اٹس مینشن دیئر ایکچولی, بٹ تھینک یو کہ ہم اس کو آپ کے اعتراض کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو رائز صرف اس لیے ہوا کہ عیسائیت میں کمزوری تھی. اگر ایتھیزم اسلام میں شروع ہوتا تو یقین کریں اس نے کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کرنی. جی عاقب ادریس صاحب, آپ نے بہت خوبصورت کمنٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت سے آگاہ ہے. اللہ تعالیٰ راجہ صاحب کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ, اور آپ کے کمنٹ کے لیے بہت بہت شکریہ. فلاسفی انڈیپ صاحب, میں آپ کا بھی بہت سر, میں دراصل جو میرا نہیں سر, آپ دوسرے دوستوں کے سوالات رہ جائیں گے, ٹائم زیادہ ہو جائے گا. میرا سوال جو ہے وہ سر, میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو سر ڈائمینشن ہے سر لینگتھ کا, کیا ہم سر ماس کے ڈائمینشن سے سر لینگتھ کو سر ماپ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو سر غلط ہو جائے گا نا, وہ اسکیل ہی سر غلط ہے. تو میں سر, میرا جو سوال ہے نا سر وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا جس ڈائمینشن میں وہ گاڈ کو پروو کرنا چاہتے ہیں, یعنی فلاسفی ہے, سائنس ہے, کیا یہ ایسے ڈائمینشن ہے کہ جن سے گاڈ کبھی ثابت ہو پائے گا؟ اس پہ ہماری ایتھیسٹ کے پاس جانے کے سے اگر ہم نہ بھی جائیں نا تو ہم خود اسلامی جو اسکالرس ہیں ان میں بڑی بحث ہے. فار ایگزامپل جو ہمارے ہیں, واقعی میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں, نہیں راجہ صاحب یہ بات نہیں ہے, ہمیں ٹائم کافی ہو گیا, اب تھک چکے ہیں, سارا دن سے بھی کام کر رہے ہوں گے, زندگی میں بھی انسان تھک جاتا ہے نا. بالکل ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت ہمارے آپ کے حافظے کو سلامت رکھے. یار بہت بڑے ہمارے فلاسفر ہیں, بڑے ہود بھائی بڑے ان کے کرٹک ہیں. خیر ابھی میرے ذہن میں ان کا نام آ جائے گا, وہ امام غزالی, اب دیکھیں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. الغزالی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوچ جو ہے وہ اپنی محدود ہے وہ, اور اللہ جو وہ لامحدود ہے. تو یہ اللاجیکل بات ہے کہ ہم لامحدود کو محدود میں کنٹین کرنے کی کوشش کریں, یہ نہیں ہو سکتا. اقبال نے ان کے اس آئیڈیا کو ریفیوٹ کیا ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں, کہ یہ کہہ کے کہ اگرچہ سوچ محدود ہے لیکن یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے ڈائنامک ہے, دیر فور یہ وجود الہی کو پرسیو کر سکتی ہے. انا ایگری وتھ اقبال, اگرچہ اقبال کی بھی بات اس میں گنجائش موجود ہے امپروو کرنے کی. تو یہ ہم صرف, اور یہ دونوں ہی فلاسفرس ہیں, دونوں ہی فلسافیکلی بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود جو ہیں, ہمارے اپنے جو فلاسفرز ہیں یہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ کیا خدا کو اسے ہم ثابت کر سکتے ہیں نہیں. آئی تھنک دی آنسر لائز ان آور ہیومن ایکسپیرینس. ایک بڑا ہی زبردست ایک فلسافیکل جملہ حضرت علی سے منسوب ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پایا. آور ہیومن ایکسپیرینس از بیسڈ آن ٹرائل اینڈ ایرر, اینڈ دیر کمز این ایگزسٹنس آف ڈیوائن ریگولیشن, کہ جب ہم ٹرائی کرتے ہیں فیل ہوتے ہیں, پھر ڈیزائر پیدا ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا ایبسٹریکٹ میں تو نہیں ہو سکتا, it is connected with something bigger. تو یہ جو بھلے وہ ایتھیسٹ فلاسفرس ہوں یا مسلم فلاسفرس ہوں, ہم خدا کا جو وجود ہے, اور بہت سے اس کی فلاسفیز ہیں, انٹولوجی ہے جس کے آگے آپ بات کر رہے تھے, فائن ٹیوننگ یا ٹیلیولوجی جس کو پہلے کہا جاتا تھا,
یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ دے پوائنٹ آؤٹ ٹو اے کریٹر. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کریٹر پہ اٹ سیلف کوئی بہت بڑا جھگڑا ہے. تو پرابلم ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہے بعد میں, یا پرسنل گاڈ پہ, جو دعائیں قبول کرتا ہے, جو جنت دوزخ کا معاملہ جس کے ہاتھ میں ہے, آخرت ہے دوبارہ اٹھانے کا اس پہ. تو جہاں تک کریٹر کا تعلق ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے کہ عام طور پہ کہ بہت ہی یعنی کہ پڑھا لکھا آدمی ہو اور وہ اسی ضد میں آ جائے کہ نہیں کریٹر نہیں ہے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ پیپل نارملی گو. جی بہت شکریہ فلسفی ڈاکٹر صاحب. بھائی صاحب یہ کویسچن کمنٹ سیکشن سے بھی ہے. فیضان مغل صاحب بہت شکریہ علی بھائی, آج میں نے سچ میں ظلم کیا, میں 2 بار آیا اور میں نے بہت جو ہے نا وہ ٹائم لیا. سر آپ کو پتہ ہے سر فلسفی میں کیا سر پرابلم ہے؟ سر مجھے فلسفیکل زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں یہ تو آپ نے انشورنس والا لیا نا اگلے بات کرنے کی. سر اسی کے ریلیٹڈ ہے سر, اسی کے جو میں نے سوال انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوتی رہے گی یار. بہت سے دوست بیٹھے ہیں, پھر ان کو ٹائم نہیں ملے گا اور یہ زیادتی ہوگی سب کے ساتھ. تو میں نے آپ کی پرسنل محبت کی وجہ سے آپ کو 3 دفعہ چانس دیا, ایسا نہ کریں, باقیوں کے ساتھ باقی زیادتی ہوگی. سر کیسے راجہ صاحب یہ کویشچن ضرور دیکھیے. سر یہ فیضان مغل صاحب فرما رہے ہیں, کہتے ہیں سر اگر پاکستان میں شریعت نافذ کر دی جائے تو یہاں رہنے والے ملحدین کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ ویسا تو نہیں ہوگا جیسا نرم رویہ آپ نے اپنی لائیو اسٹریمنگ میں ان کے ساتھ رکھا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ میری لائیو اسٹریمنگ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رویہ جو میرا سخت ہوتا ہے, یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں رویہ سخت ہوتا ہے. دیکھیں شریعت نافذ ہو جائے تو دین تو بڑا سمپل ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ اس نے انسانوں کو بنایا, اس کے بعد ان پہ کہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے اللہ خود ہی پوچھ لے گا. اٹس ناٹ اپ ٹو می کہ میں کسی کو زبردستی مسلمان کروں. تو آپ کا اپنا رستہ, ہمارا اپنا رستہ, ہم تو یہی کہتے ہیں. تو اگر شریعت نافذ ہو جائے تو پھر ایتھیسٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی ناٹ ایتھیسٹ بٹ وانٹ ٹو ٹاک. جی السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جسٹ 1 کوسچن سر. جی بالکل, میرا کویشچن جو تھا وہ نماز سے ریلیٹڈ تھا کہ آپ مجھے بتائیے, قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, لیکن ادھر ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ گناہ کر رہے ہیں. تو کیا اس کا معاملہ ہے, یہ مجھے ذرا کائنڈلی بتائیے. قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے فزیکلی روکتی ہے. قرآن نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے, اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کے فرق کو ذہن میں رکھیں کہ نماز جو ہوتی ہے یہ قائم کی جاتی ہے. جب آپ نماز قائم کرتے ہیں تو بلا شبہ یہ آپ کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ میری جو گفتگو ہے یہ اس پہ بھی میں بات میں بیس کر رہا ہوں کہ لٹرلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہاؤیور عادت میں اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. جب انسان عادت بنا لے نماز کو عبادت سے چھوڑ کے, بس ایک رسم ہے کہ دن میں کرنی ہے, تو پھر وہ جو مرضی کرے, کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں جیسے ایک یونیفارم ہے وہ انسان کو اچھے کام کرنے پہ, یا جو اس کی فیلڈ ہے اس کے ساتھ پازیٹیو کام کرنے پہ انکریج کرتا ہے اور برے کام کرنے سے روکتا ہے, سائیکولوجیکلی روکتا ہے, فزیکلی نہیں روکتا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں بہت سے, وہ غلط ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں. یونیفارم ڈاکٹر والا پہنا ہوا ہوتا ہے. پولیس والے ہوتے ہیں بہت سے, وہ رشوت لے لیتے ہیں, بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن یونیفارم انہوں نے بھی پہنا ہوا ہوتا ہے. تو یونیفارم فزیکلی کسی کو روکتا نہیں ہے, نہ ہی یونیفارم کسی کے پولیس والے کے لیگل نالج میں اضافہ کرتا ہے, نہ ہی وہ ڈاکٹر کے میڈیکل نالج میں اضافہ کرتا ہے. لیکن سائیکولوجیکلی ایک ایکسپیکٹیشن مینٹین ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ یونیفارم پہنا ہوا ہے تو آپ سے پھر یہ کم سے کم توقعات ہیں. تو جو نماز کے بارے میں وہ اس کانٹیکس میں بات ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس سے یہ توقع ہے کہ پھر وہ برے کام نہیں کرے گا. لیکن اگر پھر بھی وہ کرتا ہے تو اس کا حساب نے پھر اس نے اللہ تعالیٰ اسے خود لے لے گا اس دنیا میں اور آخرت میں. تو نماز کے بارے میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ وہ فزیکلی کسی کو روکتی ہے, نہیں, وہ سائیکولوجیکلی روکتی ہے. اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم ویسا نہ کرو. بہت شکریہ ناٹ ایتھیسٹ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں گے. جی بالکل, چلو اوکے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت